مختصر حمد و صلات کے بعد 26 ذوالحجہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ معروف ویسے یکم محرم ہے، لیکن مضبوط جو بات ہے وہ یہی ہے کہ 26 ذوالحج جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ کے ایک عظیم شخصیت ہیں، مسلمانوں کے امیر، دوسرے خلیفہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے داماد بھی ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے ایمان کی گواہی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جن کی دینداری کی گواہی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جن کی حق گوئی کی گواہی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، اور جو صحیح احادیث میں محدثین کرام نے قیامت تک کے لیے اسے محفوظ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دیندار ہونے کی گواہی دی ہے۔ صحیح بخاری میں 3691 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینا انا نائم رأیت الناس عرضوا علی، میں سویا ہوا تھا، کچھ لوگ مجھ پر پیش کیے گئے، وعلیہم قمص، انہوں نے کچھ قمیصیں سب نے ڈالی ہوئی تھی، قمیصیں، فمنہا ما یبلغ الثدی ومنہا ما یبلغ دون ذلک، کچھ لوگوں کی قمیض جو تھی وہ سینے تک آ رہی تھی اور کچھ لوگوں کی قمیض اس سے بھی چھوٹی تھی، وعرض علی عمر، اور مجھ پر عمر پیش کیے گئے، وعلیہ قمیص اجترہ، اور ان کے اوپر ایسی قمیض تھی جو زمین تک جا رہی تھی، یعنی اتنی لمبی اور سب سے بڑی قمیض جو زمین کو جو ہے وہ چھو رہی تھی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، فما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ اس خواب کی تعبیر کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہاں پر قمیض سے مراد الدین، دین ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی سچی زبان سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دیندار ہونے کی گواہی دی۔ گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بعد ویسے تو دیگر صحابہ کرام بھی اپنا اپنا رتبہ رکھتے ہیں، لیکن اس خواب کے روح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سب سے زیادہ دینداری موجود تھی۔ پر میں کچھ لوگوں کی قمیض سینے تک تھی، کچھ چھوٹی، اس سے بھی چھوٹی قمیصیں تھی لوگوں کے پاس، لیکن عمر کے اوپر جو قمیض تھی وہ زمین تک لگ رہی تھی، یعنی اتنی بڑی قمیض سے مراد یہ کہ سب سے زیادہ دین حضرت عمر کے پاس تھا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے ایمان کی گواہی بھی اس دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ یہ بھی روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، حضرت عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، اے اللہ کے رسول اپنی جان کے بعد دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھے آپ عزیز ہیں، یعنی اپنی جان، سچ بولا نا، سچے انسان تھے، اللہ کے رسول اپنی جان مجھے زیادہ عزیز ہے، اس کے بعد دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھے آپ محبوب ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، نہیں عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، یہاں تک کہ میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں تب تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، اے اللہ کے رسول پھر بے شک اب سے مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے آپ محبوب ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا، یعنی نبی علیہ السلام کی موجودگی میں ایمان کی تکمیل کی گواہی کس نے دی؟ خود
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के ईमान की गवाही, सही बुखारी में 6632 नंबर पर यह हदीस मौजूद है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु वो शख्सियत है कि जिनके आलिम दीन होने की गवाही खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। ये भी रिवायत सही बुखारी में 3681 नंबर पर है। वैसे तो दीगर भी बड़े सहाबा किराम थे जो आपसे तालीम लेते थे, आपसे सीखते थे, आपके पास बैठते थे, लेकिन ये एजाज भी हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के हिस्से में आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान नबूवत से हजरत उमर के सबसे बड़े आलिम होने की गवाही दी। बैना अना नाइमुन, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं सोया हुआ था, शरिबतु यानी लबन, मैंने दूध पिया और इतना पिया कि मैं फुल शराब हो गया और उस दूध की शराबी मैंने अपने नाखनों के अंदर भी उसका असर देखा, यानी खूब मैंने शराब होकर दूध पिया। फिर उसके बाद बचा हुआ दूध मैंने वही प्याला जिससे मैंने पिया था वो मैंने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को दिया ख्वाब में। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल इसकी क्या ताबीर है, आप इसकी क्या ताबीर फरमाते हैं? फरमाया अल इल्म, इससे मुराद इल्म है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म से खूब शराब होने के बाद वही इल्म का प्याला हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को दिया और फरमाया कि इस ख्वाब में दूध से मुराद क्या है? इल्म। तो नबी अलैहिस्सलाम के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के इल्म की गवाही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से दी। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत है कि जिनकी हक गोई की गवाही खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। यानी सैयदना उमर हक गो इंसान थे, हमेशा हकीकत पर मबनी गुफ्तगू फरमाया करते थे, इंसाफ पर मबनी गुफ्तगू फरमाया करते थे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं। मुस्नद अहमद में सही सनद के साथ 5145 नंबर पर यह हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह तआला जअल हक़ अला लिसानी उमर व क़ल्बी, फरमाया कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु की जुबान पर और आपके दिल पर हक रख दिया, हक जारी कर दिया। यानी बेशक के साथ इस बात का आगाज किया कि बेशक इस बात में कोई शुबा नहीं है कि अल्लाह ताला ने उमर को हक गो बनाया, जुबान पे भी हक जारी किया है और इनके दिल पर भी हक जारी किया है। यही वजह है कि हजरत उमर हमेशा हक पर मबनी गुफ्तगू फरमाते और बाज़ औक़ात आप कोई ऐसी बात करते, कोई मशवरा देते, नबी अलैहिस्सलाम भी उसे मशवरे को पसंद फरमा लिया करते थे। बाज़ औक़ात कोई ऐसा मशवरा देते कि आसमानों के रब को भी वो मशवरा पसंद आता और अल्लाह ताला कुरान मजीद में कानून बनाकर उसे नाजिल कर देता। पर्दे का हुक्म का मशवरा हजरत उमर का था। अल्लाह के रसूल अच्छा नहीं लगता कि औरतें जो है वो इस तरह चेहरा नंगा करके आए, और खास तौर पर आपकी अज़वाज के बारे में उन्होंने कहा था। अल्लाह ताला ने आसमान से इस बात को पसंद किया और आयत नाजिल करके फरमाया है नबी अपनी बीवियों को भी हुक्म दे दें, मुझे उमर का मशवरा पसंद आया, आज के बाद ये चेहरा ढांका करें, पर्दा किया करें। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के और भी कई बातें अल्लाह ताला ने पसंद करके उसको कानून बनाया। बहरहाल सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दीन, ईमान, इल्म, हक गोई की गवाही नबी अलैहिस्सलाम ने दी। उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु वो शख्सियत हैं जो महबूब मुस्तफ़ा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन शख्सियात से मोहब्बत का इजहार करते थे उनमें एक सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु है। सही बुखारी में यह भी हदीस है 3662 नंबर पर सहाबी रसूल अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल से, उन्होंने पूछा ए अल्लाह के रसूल अय्युन नासी अहब्बु इलैका, लोगों में से सबसे ज्यादा महबूब आपको कौन है, लोगों में से सबसे ज्यादा आप किससे मोहब्बत करते हैं? काला आयशा, फरमाया सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर मैं किसी से करता हूं तो वो मेरी बीवी आयशा रजी अल्लाह अन्हा है। फकुलतु मिनर रिजाल, मैंने कहा अल्लाह के रसूल मर्दों में से आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबूहा, आयशा के बाप अबू बकर से। कुलतु सुम्मा मन, फरमाया अबू बकर के बाद सबसे ज्यादा कायनात में मोहब्बत आपको किससे है? काला सुम्मा उमर इब्नुल खत्ताब, फरमाया कि अबू बकर के बाद अगर कायनात के अंदर लोगों में सबसे ज्यादा मुझे किसी से मोहब्बत है तो वो उमर इब्ने खत्ताब है, खत्ताब का बेटा उमर है जिससे मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अबू बकर के बाद मोहब्बत है। फअद्दा रिजालन,
آپ بھی کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے دیگر اور بھی لوگوں کے نام ذکر کیے، یعنی اس سے بھی محبت ہے، اس سے بھی یقیناً دیگر صحابہ کا بھی آپ نے ذکر کیا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے، اللہ کی قسم کائنات کا رب بھی آپ کو پسند کرتا ہے، کائنات کا رب بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب وہ شخصیت ہے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعائیں کر کر کے مانگا۔ یہ اعزاز بھی صرف حضرت عمر ابن خطاب کو حاصل ہے کہ دیگر جب اسلام شروع ہوا، غریب لوگ مسلمان ہو رہے تھے اور دیگر صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس خود چل کر آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن عمر ابن خطاب کو یہ اعزاز اللہ رب العزت نے دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو مانگا، اللہ سے دعائیں کر کر کے مانگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب، کہ اے اللہ ابو جہل اور عمر بن خطاب ان دو بندوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے، الفاظ پہ غور کرنا ہے، اے اللہ وہ ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے تجھے جو محبوب ہے، جو تجھے پسند ہے، اسے اسلام کی توفیق دے کر اسلام کو اس کے ذریعے سے قوت عطا فرما، اسلام کو اس کے ذریعے سے عزت اور بلندی عطا فرما۔ تو اللہ نے کس کو چنا؟ اللہ نے عمر ابن خطاب کو چنا۔ پتا چلا کہ نبی علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، اللہ جو تجھے پسند ہے دونوں میں سے، کیونکہ دونوں سردار تھے، ابو جہل بھی ایک بڑا سردار تھا قریش کا، مکے کا، اور حضرت عمر بن خطاب بھی ایک بڑے سردار تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی چاہت تھی کہ ان میں سے کوئی ایک سردار ملے جو اسلام کو قوت دے، اسلام کو عزت اس کے ذریعے سے ملے، اسلام کو بلندی ملے۔ نمازیں چھپ چھپ کے پڑھی جا رہی ہیں، اللہ کی عبادت چھپ چھپ کے کی جا رہی ہے، اللہ کو سجدے چھپ چھپ کے کیے جا رہے ہیں، کوئی ایسی شخصیت آئے جو ان کا سہارا بنے، جو ان کا گارڈ بنے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کھلے عام کی جا سکے، اللہ تعالیٰ کے دین کی بات کھلے عام کی جا سکے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کو قبول فرمایا اور عمر ابن خطاب کو اسلام لانے کی توفیق دی۔ اور واقعہ 2-4 جمعے پیچھے ہم اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کی توفیق انہیں ملی، کیا وہ معاملہ بنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد صحابہ کہتے ہیں پھر اسلام چڑھتا ہی چلا گیا، پھر اسلام کو بلندیاں ہی ملتی چلی گئیں، پھر اسلام مضبوط در مضبوط ہی ہوتا چلا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عمر۔ فرمایا صحیح بخاری 3699، فرمایا کہ پہلی امتوں میں بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے کہ جو نبی نہیں ہوتے تھے لیکن فرشتے ان سے باتیں کرتے تھے، اگر میری امت میں بھی ایسا کوئی شخص ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یعنی یہ دیکھیں کیسا اعزاز، کیسے الفاظ، کیسی عزتیں، کیسی بلندیاں نبی علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے سیدنا عمر ابن خطاب کو دی۔ اور سیدنا عمر ابن خطاب وہ شخصیت ہے کہ جو دین کے معاملے میں انتہائی سخت مزاج تھے، دیندار ایسے تھے کہ دین کے بارے میں کبھی کوئی سستی، کوئی غفلت، کوئی کمپرومائز ان سے دیکھنے کو نہیں ملتا تھا، دین کے بارے میں انتہائی سخت مزاج تھے۔ اور یہی بات جامع ترمذی 3790 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ارحم امتی بی امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر۔ فرمایا کہ میری امت میں سے، میری امت کے لیے سب سے زیادہ رحم دل، نرم دل ابو بکر ہے، اور سب سے زیادہ دین کے معاملے میں اگر کوئی بندہ سخت ہے تو وہ عمر ہے۔ یعنی دین کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہ کرنے والا، دین کے بارے میں ذرا لحاظ، سستی، غفلت نہ کرنے والا، وہ کون ہے؟ وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ اور سیدنا علی المرتضی، سیدنا علی خود روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی میں 3664 نمبر حدیث ہے، سیدنا علی راوی ہیں، خود بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ابو بکر و عمر پر، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہازانی سیدہ کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ فرمایا کہ نبیوں اور رسولوں کے سوا اس امت، اس کائنات میں اگلے پچھلے
जितने उम्र रसीदा लोग हैं जन्नत में उन सब के सरदार होंगे अबू बकर उमर। जन्नत में वैसे सब ने जवान होके जाना है, जन्नती नौजवानों के सरदार हजरत हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा है। लेकिन दुनिया में जो बड़ी उम्र में फौत हुए, दुनिया में जो उम्र रसीदा होकर जितने लोग फौत हुए, उन सब के जन्नत में सरदार होंगे हजरत अबू बकर और हजरत उमर। नौजवानों के सरदार हसन हुसैन भी हमारे सरों का ताज हैं, और दुनिया में उम्र रसीदा होकर फौत होने वाले उन सब के सरदार अबू बकर उमर रजी अल्लाह अन्हुमा, वो भी हमारे सरों का ताज हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस तरह भी हजरत उमर की शान को उजागर किया। सैयदना उकबा बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, लौ काना नबियुम बअदी लकाना उमर इब्नुल खत्ताब। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मेरे बाद को नबी होता तो उमर होता, अगर मेरे बाद अल्लाह ने किसी को नबी चुनना होता तो उमर बिन खत्ताब, खत्ताब का बेटा उमर वो शख्सियत है कि अल्लाह ने अगर नबी चुनना होता मेरे बाद तो उमर को चुनता। ये अजीम शख्सियत जो नबी अलैहिस्सलाम की भी पसंदीदा, अल्लाह की भी महबूब शख्सियत, और हजरत उमर इब्न खत्ताब वो शख्सियत है जिन्हें देखकर शैतान भी रास्ता बदलता है। हजरत साद बिन नबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, उमर रजी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर घर में उनके आने की इजाजत मांगी। उस वक्त आपके पास आपकी अज़वाज मुतहरात बैठी थी, बातें कर रही थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज नबी अलैहिस्सलाम की आवाज के ऊपर अपनी आवाज बुलंद करते हुए नानो नफके के अंदर इजाफे का मुतालबा कर रही थी। जो ही उमर रजी अल्लाह अन्हु की आवाज सुनी तो वो सारी पर्दे के पीछे भाग गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को अंदर आने की इजाजत दी। सैयदना उमर अंदर आए, देखा नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, आपके चेहरे पर तबस्सुम था। फरमाया, या रसूल अल्लाह अज़हक़ल्लाहु सिन्नका, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह आपको ऐसे ही सारी जिंदगी हंसता मुस्कुराता रखे, क्या वजह है? फरमाया, अजिब्तु मिन हाउलाइ अल्लाती कुन्ना इंदी, मैं तो इन औरतों की वजह से हंस रहा हूं, ताज्जुब में मुब्तला हूं, मुझे इन पर हंसी आ रही है कि जो मेरे पास बैठी थी, मेरे साथ ऊंची ऊंची आवाज में बातें कर रही थी। फलम्मा समिअना सौतक इब्तदरनल हिजाब, जब तुम्हारी उमर आवाज सुनी तो पर्दे के पीछे भाग गई हैं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, फ़अन्ता अहक्कु अन यहबना या रसूल अल्लाह, आप तो ज्यादा इस बात का हक रखते हैं कि ये आपसे डरें, मुझसे डर रही हैं, आपसे नहीं डर रही। फिर फरमाया, या अदुव्वाति अनफुसिहिन्ना, ऐ अपनी जानों की दुश्मनों। नबी अलैहिस्सलाम के अज़वाज में आपकी बेटी भी शामिल थी ना, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की। तो कहने लगे कि ऐ अपनी जानों की दुश्मनों, क्या तुम मुझसे डरती हो और अल्लाह के रसूल से नहीं डरती? अब उनका जवाब सुने। फरमाया, क्या मुझसे डरती हो और अल्लाह के रसूल से नहीं डरती? तो अंदर से आवाज आई, उन अज़वाजे मुतहरात ने कहा, नअम अंता फज़्ज़ु व अग़लज़ु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल उमर, हम आपसे डरती हैं, अल्लाह के रसूल से नहीं डरती। अल्लाह के रसूल में आप जैसा गुस्सा और सख्ती नहीं है, यानी आप अल्लाह के रसूल से भी ज्यादा सख्ती रखने वाले, गुस्सा रखने वाले हैं। अल्लाह के रसूल से ज्यादा आपके अंदर गुस्सा मौजूद है। अल्लाह के रसूल से हमें डर नहीं लगता, हमें आपकी शख्सियत से डर लगता है, अल्लाह की कसम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्होंने ये जवाब दिया ना कि आप में ज्यादा गुस्सा और सख्ती है, आपसे हमें डर लगता है, अल्लाह के रसूल से नहीं लगता, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युहा यब्नल खत्ताब, ए खत्ताब के बेटे उमर, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मा लकिया का शैतान सालिकन फज्जन कत्तु इल्ला सलका फज्जन गैरु फज्जिका, कि शैतान भी तुझे जिस रास्ते पर चलता देख ले तो वो भी अपना रास्ता तब्दील कर लेता है। ये किसने कहा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सही बुखारी 3683 नंबर हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद ये गवाही दी कि उमर, शैतान भी तुझे देखकर रास्ता बदल लेता है। और जिसकी राय नबी अलैहिस्सलाम की राय हो जाती थी, जिसकी राय नबी अलैहिस्सलाम पसंद करते थे, जिसकी राय खुद अल्लाह ताला पसंद करता था। एक लंबी हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा को अपने जूते बतौर गवाही के देकर भेजा कि जाकर ऐलान कर दो, जो भी बंदा तुम्हें मिले जो अल्लाह की वहदानियत की गवाही देता हो, मुझे रसूल मानता हो, उसे जन्नत की खुशखबरी दे दो। हजरत अबू हुरैरा बाहर निकले, सबसे पहला बंदा ही उमर मिल गया। और उमर रज़ी अल्लाह ने पूछा, ये क्या जूते उठाए हैं? फरमाया, ये अल्लाह के रसूल के जूते हैं, और अल्लाह के रसूल ने मुझे बतौर गारंटी ये दिए और एक बड़ी अजीम बात देकर भेजा है ताकि लोग मेरा यकीन करें कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इसलिए आपने अपने जूते मुझे बतौर गारंटी इनायत फरमाया है।
क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने? फरमाया अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जो बंदा भी तुझे मिलता जाए जो अल्लाह की वहदानियत की और मेरे रसूल होने की गवाही दे, उसे जन्नत की गारंटी, जन्नत की बशारत दे देना। हजरत उमर ने गुस्से में आकर सीने पर अबू हुरैरा के ऐसे जोर से हाथ मारा और हजरत अबू हुरैरा नीचे शरीन के बल गिर पड़े और कहते हैं मैं रोने के करीब था, इतनी जोर से उन्होंने मुझे इस तरह थप्पड़ मारा। मैं नबी अलैहिस्सलाम के पास गया, रोने के करीब था। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या हुआ? फरमाया अल्लाह के रसूल आपने ये मुझे कहकर भेजा था, पहला बंदा उमर मिला, उसे मैंने आपकी ये बात बयान की, उसने आगे से मुझे मारकर नीचे गिरा दिया। फरमाया उमर क्या मामला है? कहा अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो, ऐसा ना कीजिए क्योंकि मैं डरता हूं कि लोग इस पर तकिया करके बैठ जाएंगे, उनको अमल करने दें, उनको अमल करने दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फखल्लिहिम, उमर तुम ठीक कहते हो, वाकई लोगों को ये गारंटी जन्नत की नहीं देनी चाहिए बल्कि उन्हें अमल करने देना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर की राय को पसंद किया। मेरे भाइयों सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु वो अजीम शख्सियत है कि जिनके बहादुर और नडर होने की गवाही भी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं सोया हुआ था, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक कुएं के पास खड़ा हूं और उस कुएं से पानी खींच रहा था। मेरे पास अबू बकर और उमर भी पहुंच गए। अबू बकर ने डोल लिया, उसमें से पानी निकालना शुरू किया, 2 डोल उन्होंने निकाले, उसके बाद हजरत अबू बकर मजीद ना निकाल सके और उनके पानी खींचने में ज़ौफ था और अल्लाह ताला ने अल्लाह उनकी मगफिरत करेगा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। फिर अबू बकर के हाथ से डोल उमर ने लिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उनके हाथ में पहुंचते ही वो डोल एक बड़े डोल की शक्ल इख्तियार कर गया। मैंने कोई हिम्मत वाला और बहादुर इंसान नहीं देखा जो इतनी हुस्न तदबीर और मजबूत कुव्वत के साथ काम करने का आदी हो। चुनाचे उन्होंने इतना पानी खींचा उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कि लोगों ने ऊंटों के पानी पिलाने की जगह भी भर ली। इससे मुराद खिलाफत थी, यानी अबू बकर ने 2 डोल निकाले, 2 साल उनकी खिलाफत थी। और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की बहादुरी और मजबूती का आपने इशारा दिया कि उनकी जो खिलाफत होगी वो मजबूत तरीन खिलाफत होगी, उसमें इस्लाम फैलेगा, इस्लाम मजबूत होगा और इंतहाई इंसाफ और अदल पर मबनी उनकी हुकूमत होगी। और फिर चश्मे फलक ने देखा, अल्लाह की कसम कायनात में हर देखने वाली आंख ने, हर सुनने वाले कान ने इस बात की जो है वो गवाही दी कि हजरत उमर का दौर अल्लाह की कसम इंसाफ से मबनी दौर था। अल्लाह की कसम इतना मजबूत दौर, 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर हजरत उमर ने हुकूमत की और जिनके बारे में यहूदी भी ये कहने पर मजबूर हुए कि अगर उमर 10 साल और हुकूमत कर जाता पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहरा देता, पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा हो जाता। उमर के किरदार को देखकर, उमर की बहादुरी को देखकर, उमर के इंसाफ को देखकर, उमर के अदल को देखकर अगर उमर 10 साल और हुकूमत कर जाता, कौन कह रहे हैं? गैर मुस्लिम कह रहे हैं, यहूदी इकरार कर रहे हैं कि अगर 10 साल उमर और हुकूमत कर जाता तो दुनिया में इस्लाम का इनाम होता। बहरहाल मुख्तसरन दीगर भी ज़ुबान नबूवत से अशरा मुबशरा में भी शामिल हैं। 10 वो जो सहाबा जिनको जुबान से नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो जन्नत की गारंटी दी उनमें भी शामिल हैं। फिर लहदा से भी नबी अलैहिस्सलाम ने अक्सर उनको जो है वो जन्नत की गारंटी दी है। ये बातें मैं अहादीस स्किप कर रहा हूं, थोड़े से वक्त में उनकी शहादत का वाकया जो सही बुखारी के अंदर मौजूद है वो लफ्ज ब लफ्ज आपको पढ़ के सुनाना है। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु की शहादत का जो अलमनाक वाकया है। हजरत अमर बिन मैमून रजी अल्लाह अन्हु रावी हैं, ताबईन में से हैं। अल्लाह ताला ने हजरत उमर की शहादत को भी मुकम्मल लफ्ज ब लफ्ज क़यामत तक महफूज किया है और ऐसी किताब में महफूज किया है जो असहुल कुतुबी बादा किताबिल्लाह, कुरान के बाद सबसे अफजल किताब बुखारी शरीफ, उसमें अल्लाह ताला ने हजरत उमर की शहादत का मुकम्मल वाकया क़यामत तक के लिए महफूज किया है। लफ्ज ब लफ्ज पढ़ूंगा। अमर बिन मैमून कहते हैं कि जिस सुबह को आप जख्मी किए गए, फजर की नमाज में उनको शहीद किया गया, उस दिन मैं फजर की नमाज के इंतजार में सफ के अंदर खड़ा था और मेरे और उनके दरमियान सिर्फ अब्दुल्ला बिन अब्बास के सिवा और कोई नहीं था। यानी मैं दूसरी सफ में था, अगली सफ में अब्दुल्ला बिन अब्बास थे और उनके आगे मुसल्ले पर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जो है वो इमामत के लिए खड़े थे। और सैयदना उमर की आदत थी जब सफ से गुजरते तो फरमाते जाते कि सफे सीधी कर लो, और जब देखते कि सफों में कोई खलल नहीं रह गया तब आगे मुसल्ले पर बढ़ते और तकबीर कहकर नमाज
पढ़ाते। फजर की पहली रकात में उमूमन सूरह यूसुफ या सूरह नहल या इतनी ही बकदर कोई तवील सूरत पढ़ते थे, यहां तक कि लोग जमा हो जाते। उस दिन अभी आपने तकबीर ही कही थी, यानी अभी अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू की, मैंने सुना कि आप फरमा रहे थे ओ मुझे कत्ल कर दिया या मुझे किसी कुत्ते ने काट लिया। अबू लोलो फिरोज मजूसी जो काफिर था, आग का पुजारी था, हजरत मुगीरा रजी अल्लाह अन्हु से अबी रसूल का ये गुलाम था, इसने अपना दो धारी खंजर जो तैयार किया था बड़ा स्पेशल, और उससे 3 वार करके हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को पेट में उसने वार करके 3 जख्म दिए और हजरत उमर को उसने शहीद किया। उसके बाद वो बदबख्त अपना 2 धारी खंजर लिए दौड़ने लगा और दाएं बाएं जिधर भी फिरता लोगों को जख्मी करता जाता। इस तरह उसने 13 आदमियों को जख्मी कर दिया, जिनमें से 7 अहबाब ने शहादत पाई और बाकी जो थे वो 6 अहबाब बचे। 7 ने शहादत पाई। मुसलमानों में से एक साहिब हत्तान नामी ने यह सूरत देखी तो उसने उसके ऊपर अपनी चादर डालकर उसको जकड़ दिया। उस बदबख्त को जब यकीन हो गया कि अब पकड़ लिया जाएगा तो उसने खुद अपना हाथ से अपना गला काट लिया, यानी उसे पता था कि अब जान तो छूटनी नहीं, खुद ही उसने अपने जो है अपने आप को गले अपना खंजर से अपने आप को भी अपना उसने खुद ही गला काट लिया। फिर हजरत उमर ने अब्दुर्रहमान बिन औफ का हाथ पकड़कर उन्हें आगे बढ़ा दिया। अमर बिन मैमून बयान किया कि जो लोग उमर रजी अल्लाह अन्हु के करीब थे उन्होंने भी वो सूरत हाल देखी जो मैं देख रहा था, लेकिन जो लोग पीछे थे, पिछली सफों में मस्जिद के किनारे पर थे, उन्हें कुछ मालूम नहीं हो सका कि क्या मामला हुआ है। चूंकि उमर रजी अल्लाह अन्हु की किरात में उन्होंने आवाज नहीं सुनी तो बस वो पीछे से सुभान अल्लाह कहते रहे। आखिर सईदना अब्दुर्रहमान बिन औफ ने लोगों को नमाज बहुत हल्की पढ़ाई। फिर जब लोग वापस होने लगे तो उमर ने फरमाया, इब्ने अब्बास देखो मुझे किसने जख्मी किया है, यानी पता नहीं चला। ये पता इससे ये भी एक चलता है कि फुल अंधेरा था और अंधेरे में नमाज फजर पढ़ी जाती थी, तो उमर रजी अल्लाह अन्हु को खंजर मार के चला गया, लेकिन अभी भी पता नहीं चला किसने जो है वो शहीद किया। तो फरमाया कि इब्ने अब्बास देखो मुझे किसने कत्ल किया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास थोड़ा घूम फिर कर देख कर आए। फरमाया मुगीरा रजी अल्लाह अन्हु के गुलाम अबू लोलो मजूसी ने आपको जख्मी किया है। उमर रजी अल्लाह अन्हु ने दरियाफ्त फरमाया वही जो कारीगर है। जवाब दिया कारीगर था, लोहार भी था, नक्काश भी था और बढ़ई भी था बड़ा अच्छा। तो फरमाया वही जो कारीगर था उसने कहा जी। इस पर उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया अल्लाह उसे बर्बाद करे, मैंने तो उसे अच्छी बात का ही हुक्म दिया था। यानी इसका इख्तिलाफ यह हुआ था 100 दिरहम इसके ऊपर महाना हजरत मुगीरा ने जो है वो खराज लगाया था। ये कहता था उमर को कि मेरे ऊपर खराज बड़ा ज्यादा कम करवाएं। तो हजरत उमर ने कहा अल्लाह ने तुझे इतनी सलाहियत दी और तू इतना कमाता है, 100 दिरहम तेरे लिए कोई ज्यादा नहीं। तो इसका उसने गुस्सा दिल में पाला हुआ था और इस वजह से उसने जो है वो ठानी थी कि जब मौका मिला मैं कत्ल करूंगा। बहरहाल उन्होंने कहा वो जो कारीगर था, तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा जी वही जो कारीगर था उसने। फरमाया अल्लाह उसे बर्बाद करे, मैंने तो उसे अच्छी बात की थी, उसने ये बदला दिया। अल्लाह ताला का शुक्र है उसने मेरी मौत किसी ऐसे शख्स के हाथों नहीं मुकद्दर की जो इस्लाम का मुद्दई हो, यानी मुझे काफिर के हाथों अल्लाह ने शहादत की मौत दी है। तुम और तुम्हारे वालिद अब्बास इसके बहुत ख्वाहिशमंद थे कि अजमी गुलाम मदीना में ज्यादा से ज्यादा लाए जाएं, यूं भी उनके पास बहुत गुलाम थे। इस पर इब्ने अब्बास ने अर्ज किया उमर अगर आप फरमाएं तो हम भी कर गुजरें। यानी मकसद ये था कि जितने भी अजमी मदीना में गुलाम है उन सबको कत्ल कर डालें। उमर रजी अल्लाह ने फरमाया ये इंतहाई गलत फिक्र है, खुसूसन जबकि तुम्हारी जुबान में वो गुफ्तगू करते हैं, तुम्हारे किबले की तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं और तुम्हारी तरह हज करते हैं। फिर सैयदना उमर रजी अल्लाह को उनके घर उठाकर लाया गया और हम आपके साथ आए। ऐसा मालूम होता था जैसे लोगों पर कभी इससे बड़ी इतनी मुसीबत नहीं आई। बात तो ये कहते थे कि कुछ नहीं होगा, आप बेहतर हो जाएंगे, और बाज ये कहते थे कि आपकी जिंदगी खतरे में, अगर आपकी इजाजत हो तो पूरा कर लेते हैं, अगर नहीं तो फिर इसको अगले जुमे के लिए स्किप कर लेते हैं। बताएं पूरा कर लें। तो कहते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को जब घर लाया गया, फिर सैयदना उमर को जो है वो खजूर का पानी पेश किया गया नबीज, और आपने उसे पिया तो वो आपके पेट से बाहर निकल गया। यानी जख्म इतने थे कि वो पानी पिया और वो जख्मों से बाहर निकल गया। फिर दूध लाया गया, उसे भी जूं ही आपने पिया जख्म के रास्ते वो भी बाहर निकल गया। अब लोगों को यकीन हो गया कि आपकी शहादत यकीनी है। फिर हम अंदर आ गए और लोग आपकी तारीफ बयान करने लगे। इतने में एक नौजवान अंदर आया और कहने लगा है अमीरुल मोमिनीन आपको खुशखबरी हो, अल्लाह ताला की तरफ से आपने रसूलुल्लाह की सोहबत उठाई, इब्तिदा में इस्लाम लाने का शरफ हासिल किया जो आपको मालूम है। फिर आप खलीफा बनाए गए और आपने पूरे इंसाफ से हुकूमत की, फिर शहादत आपको अल्लाह ने नसीब फरमाई। हजरत उमर रजी अल्लाह ने कहा
کہ اللہ की कसम मैं तो इस बात पर भी खुश हूं कि इन सारी बातों और फजीलतों की वजह से मेरा मामला बराबर बराबर छोड़ दिया जाए, यानी ना मुझे कोई अजाब हो ना मुझे सवाब हो, बस अल्लाह बराबर बराबर मेरी जान छोड़ दे। इतनी फजील आजिज़ी देखें कितनी थी, फरमाया कि मेरा बराबर मामला हो जाए, मैं इतने पर भी खुश हूं। जब वो नौजवान जाने लगा तो उसका कपड़ा टखने से नीचे जमीन की तरफ लग रहा था। उमर रजी अल्लाह ने फरमाया उस लड़के को मेरे पास वापस लाओ। जब वो आए तो आपने फरमाया मेरे भतीजे अपना कपड़ा टखने से ऊपर उठाओ, इससे तुम्हारा कपड़ा भी साफ सुथरा रहेगा और ये तकवे का बाइस भी है। ऐ अब्दुल्ला इब्ने उमर, देखो मुझ पर कितना कर्ज है। जब लोगों ने आपका कर्ज शुमार किया तो 86,000 आप पर कर्ज था। उमर रजी अल्लाह ने फरमाया, कहते हैं जी फातिमा रजी अल्लाह की विरासत हड़प कर ली, उनका जो है वो इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, अहले बैत के साथ जुल्म कर दिया। और अल्लाह के बंदो अपने गिरबान में झांको, जिस शख्सियत पर तुम आवाज उठा रहे हो खुद उसका हाल बेचारे का ये है, खलीफा है, हुक्मरान है, लेकिन जब दुनिया से जा रहा है 86,000 उसके सर पे कर्जा है, 86,000 कर्ज लेकर दुनिया से जो है वो जा रहा है। तो फरमाया कि उमर ये 86,000 अगर आले उमर के माल से अदा हो सके तो उन्हें माल से अदा कर देना, अगर पूरे ना हो फिर बनी अदी बिन काब से कहना उनके माल से लेकर मेरी अदायगी करना, अगर फिर भी मेरा कर्जा अदा ना हो तो कुरैश से कहना उनके सिवा किसी से और से मदद तलब ना करना और मेरी तरफ से उस कर्ज को अदा कर देना। अच्छा अब आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास जाओ और उनसे अर्ज करो कि उमर ने आपकी खिदमत में सलाम अर्ज किया है, और अमीरुल मुमिनीन ना कहना, उमर बिन खत्ताब कहना। उमर बिन खत्ताब अपने दोनों साथियों यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर के साथ दफन होने की इजाजत चाहते हैं आपसे। अब्दुल्ला बिन उमर ने सैयदा आयशा से सलाम अर्ज किया, अंदर इजाजत चाहिए, और फरमाया उमर आपसे अंदर दफन होने की इजाजत चाहता है। तो सैयदा आयशा ने कहा कि उस जगह को मैंने अपने लिए रखा हुआ था दफन होने के लिए, लेकिन मैं आज उमर को अपने ऊपर तरजीह देती हूँ। फिर जब उमर आए तो बताया, अब्दुल्ला बिन उमर आ गए, लोगों ने कहा, हजरत उमर ने कहा मुझे उठाओ, एक साथी ने सहारा देकर आपको उठाया, आपने दरियाफ्त किया क्या खबर लाए हो? उसने कहा ए अमीरुल मोमिनीन, ए उमर जो आपकी तमन्ना थी वो अल्लाह ने पूरी कर दी है, हजरत आयशा ने जो है वो इजाजत दे दी है। तो सैयदना उमर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, इससे अहम चीज अब मेरे लिए कोई नहीं रह गई थी, लेकिन जब मेरी वफात हो और मुझे उठा लिया जाए मेरा जनाजा तो फिर दोबारा उनसे एक दफा इजाजत मांगना, अगर वो इजाजत दे दे तो दफन कर देना, अगर इजाजत ना दे तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। फिर जब जो है वो आप फोत हुए और आपके जनाजे को उठाया गया, बहरहाल उनकी वसीयत के मुताबिक दोबारा उन्होंने हजरत आयशा से इजाजत मांगी कि हजरत उमर ने वसीयत की थी कि दोबारा इजाजत मांगना। तो सैयदा आयशा ने कहा कि मैं उनको इजाजत देती हूँ। फिर सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को उनके हुजरे में सैयदा आयशा के जहां पर अबू बकर और जहां पर उमर अबू बकर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन है, उनके साथ सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु को भी दफन कर दिया गया। अल्लाह ताला करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए सैयदना अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की जात अक़दस पर, और हमें हमेशा उनके नक्शे कदम पर चलने की और उनसे मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।